Welcome to the episode 4 of Let's Talk for Health. Today, we are going to talk about dengue in children. For this, we have Dr. Avdeen Singh with us, who is a consultant pediatrician at Surya Hospital, Greater Noida. So, sir, what is dengue, how does it spread, and how can we prevent it, especially in case of children? Okay, first of all, thank you, Dr. Raimi for having me. And dengue is a viral illness. It spreads by a mosquito bite. As we all know, it's called Aedes aegypti, tiger mosquito, and it breeds in clean household waters, like the containers which we have, buckets, and our coolers and overhead tanks. This mosquito has a flight range of just 100 to 200 meters. So in your immediate neighborhood and family, it will spread by the single mosquito, and later on when people travel, they take the virus with themselves and they get bitten by the mosquito, and then that's how it propagates. To prevent the infection, first we can affect the source of the mosquito breeding. We can empty our coolers and stagnant water wherever it is there in our household. We can use bed nets for mosquitoes, nets on our windows, and child safe mosquito repellents are also advisable to prevent the mosquito bite. That is the only way which you can prevent the dengue infection. In case a child gets dengue, how should the family is if a child gets dengue, how worried a parent should be? You see, getting a dengue infection for a child not always causes a very severe disease. Among pediatric patients, less than 5-year patients get very severe disease. Mostly less than 1 year, the infants are more vulnerable for the dengue to convert into severe dengue. And among the population from 0 to 14 years, almost like 75 to 80% of the children, they have mild disease, and from 15 to 20% they have severe dengue. 4 to 6% require platelet transfusions, and the mortality rate in our country is around 2 to 3%. It still is very high. Not all the cases will turn up into a severe dengue. It's about 15 to 20% of them which will end up in a hospital or ICU. Okay. अगर बच्चे को फीवर है, देन कैसे हम ये कह सकते हैं कि उसको डेंगू है? How we will differentiate between the fever and dengue? को फीवर है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये फीवर डेंगू फीवर ही है, या how will it differ from normal fever? डेंगू में फीवर एकदम सडन राइज करेगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, परसिस्टेंट होगा। पैरासीटामोल देने के बाद भी वो फीवर उतरेगा नहीं। साथ में थोड़े दिनों में बहुत ज़्यादा सीवियर पेट दर्द शुरू हो जाएगा, बच्चे को वॉमिटिंग शुरू हो सकती है। अगर हम और आगे बढ़ें तो बच्चे को सिर में दर्द, जोड़ों में दर्द आएगा। बुखार सबसाइड होने के बाद बच्चे को चक्कर आ सकते हैं, कमज़ोरी डेवलप हो सकती है, सूजन डेवलप हो सकती है, और कुछ परिस्थितियों में ब्लीडिंग वगैरह भी आ सकती है। अगर ऐसे लक्षण मिल रहे हैं तो डेफिनेटली डेंगू सीजन के टाइम में यू शुड गेट टेस्टेड फॉर डेंगू। तो कैसे कंफर्मेशन होता है डेंगू फीवर का? अगर बुखार के 5 दिनों के अंदर हम टेस्ट करना चाहें तो डेंगू NS1 एंटीजन है, और 5 दिन अगर हो गए हैं तो डेंगू सीरोलॉजी, जिसमें कि हम डेंगू IgM IgG टेस्ट करते हैं, इस टेस्ट से हम डेंगू को कंफर्म कर सकते हैं। तो ये हमेशा हाई ग्रेड फीवर ही रहता है या कुछ माइल्ड सिम्टम्स भी होते हैं, माइल्ड फीवर भी होता है बच्चों में? देखिए, डेंगू में इवन इन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन 75 to 80% ऑफ द केसेस विल हैव माइल्ड सिम्टम्स। इट इज कॉल्ड जस्ट डेंगू फीवर। उसमें बच्चे को बुखार होगा, तेज बुखार आ सकता है, सर में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, थोड़ी बहुत वॉमिटिंग हो सकती है, हल्का फुल्का पेट में दर्द हो सकता है, जो कि 3-4 डेज तक फीवर रहेगा, कुछ दिन तक फिर वीकनेस रहेगी, और 7 डेज के आसपास रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। ज़्यादातर केसों में ये माइल्ड ही रहता है। तो इस केस में जहाँ फीवर माइल्ड है, ऐसे में एक पेरेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, माइल्ड डेंगू का तो ट्रीटमेंट मोस्टली सिम्टोमेटिक है। अगर बच्चे को फीवर आता है तो सिर्फ पैरासीटामोल देना है, और हम स्पंजिंग कर सकते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट है कि पैरासीटामोल के अलावा जो फीवर की मेडिकेशन है, जैसे कि मेफ्टाल हो गई,
आइबुप्रोफेन हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया, वो हमें इस्तेमाल नहीं करना है डेंगू में। उससे प्लेटलेट्स लो हो जाते हैं, उससे प्लेटलेट लो होने का रिस्क है, इसलिए हम वो अवॉइड करते हैं डेंगू में। हमें पैरासीटामोल देना है, स्पंजिंग करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्लूइड इनटेक अच्छा रखता है। हम कोशिश करें कि ORS का पानी जितना हो सके बच्चा पी सके। अदर फॉर्म्स में हम उसको कुछ नारियल पानी दे सकते हैं, सूप्स दे सकते हैं। वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए ताकि वो बच्चा रेगुलरली यूरिन पास करता रहे। जाहिर सी बात है, अगर वॉमिटिंग है तो वॉमिटिंग के लिए आप कुछ मेडिकेशन ले सकते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इनफ है माइल्ड। दैट मीन्स अगर माइल्ड फीवर है तो वो आप घर में आफ्टर डॉक्टर कंसल्टेशन आप मैनेज कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर आपको समझ में आता है माइल्ड सिम्टम्स हैं तो डेफिनेटली आप घर पे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इट कैन नॉट रिप्लेस क्लिनिकल एडवाइस। अगर आपको डाउट है तो आई थिंक यू शुड डिस्कस सबसे पहले एक डॉक्टर के पास जाना है, एंड देन ओनली अगर माइल्ड अगर सिम्टम्स है डेंगू तो सीवियर है या माइल्ड है, इट्स बेटर टू लेट अ डॉक्टर डिसाइड, राइट। देन यू कैन गेट रीअश्योर्ड। वार्निंग साइंस के बारे में अगर बात करें तो व्हाट आर दी वार्निंग साइंस इन डेंगू? अगर हम वार्निंग साइंस कहें तो जैसे डेंगू में फीवर के बाद 2nd-3rd डे से स्टार्ट हो जाते हैं वार्निंग साइंस। बहुत सीवियर पेन एब्डोमेन एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ वॉमिटिंग, लाइक 5, 6, 7 एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग इन अ डे। चाइल्ड विल स्टार्ट गेटिंग डिहाइड्रेटेड, जिसका एक आपको दिखेगा कि यूरिन आउटपुट बच्चे का कम हो जाएगा। देन लेटर ऑन चाइल्ड कैन हैव bleeding also. The stool can get black colored, which is basically digested blood. We can have bleeding from gums. Child will get lethargic, might develop edema, swelling. और कुछ केसेस में अगर मान लीजिए कंडीशन और ख़राब हुई तो ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, जिसमें कि हाथ पैर ठंडे पड़ने लगेंगे, ठंडे पसीने जो कहते हैं कोल्ड क्लैमी एक्सट्रीमिटीज़ हो जाएंगी उसकी। ये सारे डेंजर साइंस हैं, अगर ये लगे तो आपको इमीडिएटली बच्चे को एडमिट कराना होगा। डेंगू में सबसे ज्यादा जो हम बात करते हैं वो है प्लेटलेट काउंट की। तो अगर प्लेटलेट काउंट कम हो गया है तो इज इट अ पैनिक सिचुएशन फॉर अ पेरेंट? यू सी थोड़ा बहुत प्लेटलेट काउंट कम होना, जैसे कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज वेरी कॉमन इन डेंगू पेशेंट्स, बिकॉज डेंगू के अपने कुछ रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, साइटोकाइन स्टॉर्म्स होते हैं, बोन मैरो सप्रेशन भी होता है, प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन होता है जिसकी वजह से। बट जैसा कि मैंने बताया 5 से 6% पेशेंट्स को ही प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर बॉडी में प्लेटलेट काउंट 10,000 तक भी है, क्योंकि 1,50,000 इज द नॉर्मल, एंड इफ द प्लेटलेट काउंट इज इवन 10,000 एंड द चाइल्ड इज नॉट ब्लीडिंग, वी डोंट नीड टू ट्रांसफ्यूज। तो प्लेटलेट कम होने से सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें प्लेटलेट देना ही पड़ेगा, और इवन अगर प्लेटलेट्स फॉल होते हैं एक लिमिट तक तो हम अगर हमें लगता है कि ब्लीडिंग का रिस्क है, वी कैन ऑलवेज ट्रांसफ्यूज प्लेटलेट्स। So you don't need to panic. Obviously, if platelets are forming, you need to be in a hospital. You need to be in touch with a clinician to handle it. बहुत सारी होम रेमेडीज के बारे में हमने सुना है, लाइक गोट मिल्क, papaya leaf, Yes. and many others. So you see, basically, as far as the evidence is concerned, all these remedies they don't work. okay. For papaya leaf extract, there have been few studies, but the studies are not very reliable. So I would say there is no evidence that papaya leaf extract or goat milk works for to rise the platelets in dengue. But if you want to use it for your own peace of mind, you can do it, but you cannot replace the clinical treatment with these remedies. That would be dangerous. क्या बच्चे को रिपीटेड इन्फेक्शन हो सकता है डेंगू का? Yes, of course. होता क्या है, डेंगू के वायरस 4 टाइप के होते हैं, ठीक है, 1, 2, 3 and 4. तो जैसे इफ वी गेट इन्फेक्टेड विद वन वायरस, वी गेट एंटीबॉडीज फॉर दैट वायरस. नाउ वी आर इम्यून फॉर दैट वायरस, बट वी कैन गेट इन्फेक्टेड बाय द अदर टाइप ऑफ डेंगू वायरस. सो ऑफ कोर्स यू कैन गेट रिपीटेड इन्फेक्शंस. In fact, the repeated infection is more dangerous, because once you get infected by one serotype and then you develop antibodies for that, because of those antibodies, when you get infected by other serotype, next infection, you have better multiplication of virus in your body, and the cytokine storm जो अपनी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है डेंगू के लिए, जो जिम्मेदार होता है हमारे शरीर में सूजन और ब्लड प्रेशर लो करने के लिए, वो और सीवियर होता है सेकेंड इन्फेक्शन में. तो सेकेंड इन्फेक्शन ऑफ डेंगू वायरस इज इवन मोर डेंजरस, and of course it's likely. So
ऐसी कोई वैक्सीन इंडिया में डेंगू के लिए? नहीं, Available? हमारे देश में अभी भी कोई वैक्सीन नहीं है डेंगू वायरस के लिए। इस पे काम चल रहा है काफी कुछ, बट कोई लाइसेंस्ड वैक्सीन नहीं है डेंगू की।